ओम शांति। आज के बाबार 31-10-2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महाबाक्य। आज बाबा खूबी सुंदर ड्रामार एक रहस्य खुलेছেন যে ড্রামাতে যা সিন যা দৃশ্য যা ঘটনা হওয়ার আছে সেটা একদম অ্যাকুরেট টাইমে হবে। যখন ড্রামার চক্র পুরো 5000 বছর পূর্ণ হবে তখন সেই ঘটনাটা আবার রিপিট হবে। যেমন আমি ব্রহ্মা বাবার শরীরে যখন এসেছি তো ঠিক 5000 বছর পূর্ণ হলো, এক সেকেন্ড হেরফের হলো না, তখনই আমি ওনার মধ্যে এসেছি। তো আজকে থেকে 5000 বছর আগে আমি যে সময় ব্রহ্মা বাবার শরীরে ঢুকেছিলাম আমি সেরকমই ওই সেকেন্ডেই প্রবেশ করছি। এরকম প্রত্যেক ঘটনা 5000 বছরের পূর্ণ আয়ু শেষ করেই সে ঘটনাটা হুবহু রিপিট হচ্ছে। তো ড্রামার এই গুহ্য রাজকে আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে। আর বাবা বলছে এটা অবিনাশী ড্রামা, এখানে কোনো সিনকে ডিলিট করা যাবে না বা কাট করা যাবে না। এটা একদম তৈরি ড্রামা, বিধি বিধান অনুসারে এই ড্রামা চলছে। তারপরে বাবা আজকে আরেকটা নতুন কথা বললেন যে মানুষ তো বিভিন্ন উৎসবতে কোনো মানুষকে গিফট দেয়, উপহার দেয়, বকশিস দেয়, কিন্তু সেটা কতক্ষণের জন্যে, অল্প ক্ষণিকের সুখের জন্যে। কিন্তু আমি হচ্ছি সুখ শান্তির দাতা, আমি সাগর। আমি তোমাদেরকে পুরো 2500 বছরের জন্যে সুখ শান্তির বেহদের উপহার দিচ্ছি, বেহদের বকশিস দিচ্ছি। আমার মতন কেউ দিতে পারবে না। মানুষ তো মানুষকে এক জন্মের জন্যে দিতে পারবে, কিন্তু আমি তো 21 জন্মের জন্যে তোমাদেরকে মালামাল করছি। তারপরে বাবা আজকে ধারণার জন্য বললেন যে তোমরা আমাকে ডেকেছো হে পতিত পাবন, এসো আর আমাকে পাবন বানাও। তো এটা নয় যে তোমরা একদিকে আমাকে ডাকবে, আমাকে যোগ লাগাবে আর একদিকে তোমরা পতিত হতে থাকবে, এটা না। আমি কারোর মধ্যে ঢুকিনি যে জানতে পারবো যে কে পতিত হচ্ছে না হচ্ছে। তো আছে এটা তোমাদের কর্তব্য যে বাবার কাছে পুরো সত্যি কথা বলো যে বাবা হ্যাঁ আমার দ্বারা বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে। তো বাবার কাছে সত্যি করে সারেন্ডার করে দিলে পাপটা অর্ধেক ক্ষমা হয়ে যাবে। তো এইভাবে বাবা আজকে অনেক ধারণার কথা, ড্রামার অনেক গুহ্য রহস্য এবং সত্যযুগের অনেক দৃশ্য বাবা দেখিয়েছেন। আসুন এবার বাবার পুরো মুরলি আমরা বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। বাবা বলছেন মিঠে বাচ্চে তোমার কর্তব্য হচ্ছে সকলকে স্থায়ীভাবে সুখ আর শান্তির পথ দেখাও। নিজে শান্তিতে থাকো আর সবাইকে শান্তির ইনাম দাও, প্রাইজ দাও। আজকে বাবা প্রশ্ন করছেন किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। বাবার জ্ঞানের কি একটা গুহ্য রহস্যকে জানার জন্যে বুদ্ধি বিশাল করতে হবে, বেহদের বুদ্ধি রাখতে হবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, तो यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। বাবা কত গুহ্য কথা বলছেন যে ড্রামার যে সিন যখন যেটা চলার আছে সেটাই চলবে এবং তার পূর্ণ আয়ু আছে। পুরো 5000 বছরের পরে ড্রামার সেই সিন রিপিট হয় যেটা 5000 বছর আগে হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন আমিও ঠিক ব্রহ্মা বাবার শরীরে তখনই প্রবেশ করি যখন ড্রামার পুরো 5000 বছর পূর্ণ হয়, আবার আমি সেই সেকেন্ডে প্রবেশ করি। তো এখানে একটুও উপর নিচ হবে না, একটুও এক সেকেন্ডের হেরফের হবে না। তো বাবা বলছে এই গুহ্য রাজকে জানার জন্যে, বোঝার জন্যে বিশাল বুদ্ধি চাই, বেহদের বুদ্ধি চাই। আজকের মুরলির গান হচ্ছে বদল যায় দুনিয়া না বদলেঙ্গে হাম। বাবা বলছেন দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যাক, কিন্তু আমরা বাবার বাচ্চারা যারা বাবাকে আমরা চিনে গেছি তারা কখনো আমরা পরিবর্তন হব না।
ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों प्रति बैठ समझाते, बच्चों को रास्ता बताते शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। बाबा रोज बोलें जे आमी ज्ञानेर सागर तुम्हें पढ़ाচ্ছি। आज के बाबा बोलছেন आमी शांतिर सागर, तो शांतिर वर्षाटाও তোমরা আমার থেকেই पाবে। इंडिविजुअल भी मिलता है और होलसेल भी मिलता है। বলছে তোমরা ব্যক্তিগত ভাবেও বাবা থেকে শান্তির বর্ষা পাচ্ছ, আর হোলসেল মানা বহু জন্মের জন্যও একসঙ্গে পাচ্ছ। यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आवे व ना आए। বলছে কেউ বাবার জ্ঞান বুঝুক না বুঝুক, কেউ বাবার কাছে वर्षा निक বা না निक, किंतु विश्व तो शांति स्थापन होगी। तो बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। বলছেন যারা নিশ্চয় বুদ্ধি তারাই বুঝতে পারছে যে আমরা বাবা থেকে वरदान प्राप्त করছি। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। तो सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकते। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है। गाते भी है ना शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परम पिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठाकर देवें। कहेंगे यह तुमको बख्शिश दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की, लेकिन वह हुआ अल्पकाल के लिए। मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है स्थायी सुख और शांति। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है, उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। बाबा एखाने कत सुंदर करे बुझिए दिलेन जे मानुष থেকে सुख चाय शांति चाय, किन्तु मानुष कतटा दिते पारबे, तार काछे निजेई तो सुख नहीं शांति नहीं, तो से अन्यके कि दिते पारे। तो भावछे जारा खूब धनी लोक साहूकार लोक तारा गरीब मानुषके कोनो बक्सिसे किछु दिए दिल, माना कोनो किछु प्राइजे दिए दिल, किन्तु कतटुकु जिनिस दिते पारबे। आर एखाने तो शिव बाबा बेहदेर सुख शांति दिच्छेन पुरो आधा कल्पेर जन्य, 2500 बछरेर जन्य। तो बाबार मतन सुख और शांतिर प्राइज केउ दिते पारबे ना। तो ऊंच ते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। बाबूजी जे मानुष तो
ঈশ্বরকে জানেই না, এই জন্য তারা সাধু সন্তদের পিছনে পড়েই থাকে আর তাদের কাছে যায় সুখ শান্তির आशीर्वाद नीते। तो वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। बाबा बोलছেন মানুষ ঋষি মুনিদেরকে কত সম্মান করে, কত শ্রদ্ধা করে, তাদের চরণ স্পর্শ করে, তাদের চরণ ধুলাই করে সে জল খায়। তো বাবা বলছেন যে তাদের শরীর তো বিকার রূপী বিষ দ্বারা তৈরি হয়েছে, তো তারা তো সম্পূর্ণ পবিত্র নয়। तो मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। বলছে सुख शांति पवित्रतार सागर होच्छेन एक बाबा। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है ना। বলছে তোমরা জানো বাবা থেকে তুমি 21 জন্মের वर्षा নিচ্ছো। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी, परंतु नई कब और पुरानी कब यह भी नहीं जानते। বলছে সৃষ্টির দুটো পার্ট, যেমন দিন আর রাতের দুটো পার্ট, একটা দিন একটা রাত, 12 ঘন্টার দিন 12 ঘন্টার রাত, সেরকম বাবা বলছে সৃষ্টির দুটো পার্ট, সত্যযুগ ত্রেতা একটা পার্ট, এটাকে ব্রহ্মার দিন বলা হয়, আর দাপর কলি একটা पार्ट, এটাকে ब्रह्मा रात बोला है। तो झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके, अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है, इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं होता, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। বাবা বলছেন যে কোনো গাছ হয়তো 200-300 বছর পুরাতন গাছ, কিন্তু অ্যাকুরেট আয়ু তো কেউ বলতে পারবে না। এবার যখন গাছ পুরো ভেতর থেকে শিকড় থেকে পচে যায় তখন পড়ে যাবে। তো সেরকম বাবা বলছেন যে কল্পবৃক্ষের আয়ু হচ্ছে 5000 বছর, এখন এর শিকড়গুলো একদম খারাপ হয়ে গেছে, এখন বাবা নতুন কলম লাগাতে এসেছেন। तो मनुष्यों का भी अचानक मौत होता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। बाबा বলছেন যে ড্রামাতে প্রত্যেক ঘটনা যখন হওয়ার আছে সেই সময় সেটা হবে, আমরা আগে চাইলেও হবে না, পরে চাইলেও হবে না। হু বহু रिपीट होनी है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकेंड का भी हेरफेर नहीं होता। বলছে 1 সেকেন্ডেরও মানে একদম হেরফের হবে না। বাবা পুরো 5000 বছরের একদম 1 সেকেন্ড কাঁটা এদিকে ওদিকে হবে না, বাবা তখনই নিচে আসছেন। तो यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। বাবা বলছেন যে আমার জন্যে জন্ম দিবস বলা হয় না, যেমন কৃষ্ণের জন্য জন্মাষ্টমী, রামের জন্য রামনবমী, জন্মতিথি বলা হয়। বাবা বলছে আমার জন্ম দিবস নয়, কেন? যদি আমার জন্ম হয় তাহলে আমার মৃত্যুও হবে, এই জন্যে আমার অবতরণের সময় লাগে রাত্রি, শিবরাত্রি বলা হয়, মানে বাবার অবতরণ হয়
कलिजुग रूपी घोर अंधकारमय रात्रिते। तो मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते हैं? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। बाबूছেন गीतातेও লেখা আছে যে হে অর্জুন, আমার জন্ম এবং কর্তব্য দিব্য আর অলৌকিক। তো আমি তোমার সদৃশ্য জন্ম নেই না। তো সেরকম বাবা বলছে যে আমি কোনো মাতা গর্ভে আসি না, আমি তো ব্রহ্মার শরীরে আবির্ভাব হই। তো আমার এই দিব্য অবতরণকেই শিবরাত্রি বলা হয়। আমি অজন্মা, আমি অভোক্তা, আমি তোমার সদৃশ্য জন্ম নেই না, শরীরও নেই না, আর সুখ আর দুঃখ ভোগ করি না। तो यह कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। तो यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो ब्राह्मणों का भी हुआ ना। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। বলছেন এটা না যে শুধু ব্রহ্মা বাবা দ্বারাই পুরো সৃষ্টি চলবে। বলছে ব্রহ্মা আছে তো ব্রাহ্মণও চাই, সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ আছে তো প্রজাও চাই। तो पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं। বাবা বলছেন যে কলিযুগের আয়ু বলছে 40,000 বছর আর সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর। তো এটা হয় না, চারটে যুগের আয়ু সমান আছে। এই জন্যে স্বস্তিকা চিহ্নতে চারটে খণ্ডকে সমানভাবে দেখানো হয়। বাবা বলছি একটা গোল বস্তুকে যদি মাঝখানে ভাগ করা হয় তাহলে দুটো দিকে একদম সমান সমান ভাগ আসবে, আর যদি চারটে ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে সমান সমান আসবে। তো এরকম সৃষ্টির এই চারটে ভাগ সত্য ত্রেতা দাপর কলি চারটে যুগেরই आयु समान আছে। तो कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। बाबा बोलছেন যে সৃষ্টি কালচক্রে বারবার 84 বার জন্ম নেওয়া, 84 বার দেহ ছাড়তে মানুষ বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর যদি 84 লক্ষ বার যদি জন্ম নিতে হতো আর বিভিন্ন জীব জন্তুতে যোনি ভ্রমণ করতে হতো তাহলে মানুষ কত ক্লান্ত হয়ে যেত। तो बाबा বলছে এরকম হয় না। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषणा आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम्हें कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो। বাবা বলছেন যে সঙ্গম যুগের ব্যাপার কেউ জানে না। এখন আমরা জেনেছি যে কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের প্রারম্ভ এটাকেই সঙ্গম যুগ বলা হয়। আর এই সময় বাবা আমাদেরকে পড়াতে আসছেন। तो यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता, थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और বৃদ্ধি होती जाती है। বলছেন দাপর যুগ থেকে এরকম রাজাদের মধ্যে রাজাদের খুব যুদ্ধ হয়েছে। তো কোনো একটা ছোট্ট রাজ্যকে কোনো রাজা জয় করলো তো
তো খুব অহংকার দেখায় যে আমি ওই রাজ্যকে জয় করে নিলাম। তো বাবা বলছে এসব দাপর যুগ থেকে রাজাদের মধ্যে লড়াই झगड़ा शुरू হয়েছে। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। बाबा बोलছেন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম রাজা রানী হচ্ছেন লক্ষ্মী নারায়ণ, विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। तो जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और भी पोप आते गए, किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। तो इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है। बाबा जे जो पढ़बे से तो भालो ग्रेड पाबे। तो ग्रेड होच्छे राज्य पदेर। बाबा एकदम सत्ययुगे राजा। वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं कहता हूँ कि बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं। ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते, बाबा यह भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। बाबा बोलছেন যেটা না যে তোমরা আমাকে ডাকবে যে হে পতিত পাবন আসো আমাদেরকে পাবন বানাও, তো আমি তোমাকে পাবন বানাবো আর তুমি পতিত হতেই থাকবে। বা হচ্ছে এরকম বাবার সঙ্গে মিথ্যা আচরণ করো না। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं। मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो न सके। বলছে আমি তো জিজ্ঞেস করতে যাব না যে তুমি পতিত হচ্ছ। বলছে যদি তোমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হয়ে থাকে তাহলে তুমি নিজেই বাবার কাছে সত্যি কথা বলো, সারেন্ডার হয়ে যাও যে বাবা আমার দ্বারা বিকর্ম হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করো। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने, पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाते हैं तो सारी की कमाई चट हो जाती है। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবাকে কোনো গুরু এই জ্ঞান দেয়নি। যদি গুরু জ্ঞান দিত তাহলে শুধু ব্রহ্মাকে কেন দিত, আরও অনেকজনকে দিত। তো বাবা বলছে যে এনার গুরু তো আমি।
गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। तो यह समझने की बातें हैं ना, सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं ना कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर बनने वाले हो। বাবা বলছে যে তোমরা সবাই এক একজন বাবার বাচ্চা, একদম কুবের হচ্ছ। तुमको बैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। तो यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार 1 नम्बर पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। बाबा बोलছেন এই आसुरी दुनियाते তোমাকে खूब সহ্য শক্তি ধারণ করে চলতে হবে। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। কেউ তোমাকে অপমান করবে, কেউ গালি দেবে, দুঃখ দেবে, তাও তোমাকে সহ্য করতে হবে। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। मुझे बाबार श्रीमत कखनो छाड़ो ना। 2 नंबर, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। बाबा बोलছে কোনো যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে বাবার কাছে সত্যি বলে দাও, বাবার কাছে লুকিও না। আজকের वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। बाबा बोलছেন बाबार संगे मंगल मिलन करो एवं बाबार संगे वार्तालाप करो एवं सटीक भावे बाबा रेस्पॉन्स प्राप्त करो, तबे तुमरा बाप समान बहुरूपी हो जावे। तो जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। बाबा बोलছেন যেমন শিব বাবা পরমধাম ছেড়ে সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা বাবার আকারী শরীরে প্রবেশ করে একদম ঝলমল করেন আকারী ফরিস্তা রূপে, তো সেরকম বাপ দাদার সঙ্গে মঙ্গল মিলন করতে তোমাকেও ঝলমলে ফরিস্তা ড্রেস পরতে হবে। তো সেই ফরিস্তা ড্রেস যদি পরো তাহলে বাপ দাদার সঙ্গে অব্যক্ত মিলনের স্বাদ নিতে পারবে, অনুভব নিতে পারবে। বাবা বলছে এই ড্রেস পরলে আগুন, মায়া, জল কেউ তোমাকে ছুতে পারবে না। এই ফরিস্তা ড্রেস হচ্ছে ওয়াটার প্রুফ, ফায়ার প্রুফ, মায়া প্রুফ ড্রেস। তো এটা পরো আর বাবার সঙ্গে মঙ্গল মিলন করো সূক্ষ্মবতনে। আজকে বাবা স্লোগানে বলছেন দৃঢ়তা असंभव से भी संभव करा देती है। যদি মনে দৃঢ় সংকল্প থাকে তাহলে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যাবে। ओम शांति।